Hello everyone, welcome back to our channel Saraswati Coaching Classes and I am Mrs. Varsha. In previous session we have talked about the first chapter of science, that is crop production and management. In that we have seen the basic practices of agriculture. We have discussed about preparation of soil in detail. The rest of topics like weed, then how to control the weed, what are the manure, fertilizer, their application, everything I have convey you through the links which we have already done for the class 9. Now the very important topic which we are going to talk about agriculture, that is irrigation. Okay, what is mean by irrigation? Irrigation means to supply the water to the farm in certain period of time, या फिर खेती को पानी देना बार बार according to the need of crop type of soil, that is called as the irrigation. Now irrigation इतना important क्यों है? What is irrigation so important? Irrigation is very important because when we are irrigating the farm, at that time it loosens the soil, it makes the soil moist. Because of that, what happens? It becomes very easy for the seeds to germinate. As the soil contains water after irrigation, it remains moist for longer period of time, and because of that what happens? Easily seed can germinate. ठीक है? Second benefit ये होता है, when the farm is irrigated, that time the nutrients which are available into the soil, which can get dissolved into the water, जो minerals, nutrients जो soil में होते हैं और वो पानी में dissolve होते हैं, उनके लिए water is becoming available to get it dissolved in, और dissolve होने के बाद that can be easily absorbed by the roots of growing crop plants. ठीक है? Next thing is that when farm is irrigated along with the crop plant, along with the roots of crop plant, जो भी soil में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ल्यूग्रिन अल्गी होते हैं, एजोला होते हैं, some bacteria are there, nitrogen fixing bacteria are there, इनको भी उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उनकी रेस्पिरेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है. They also get water for their life, and as they increase in number, of course they helps to get more and more nutrition to the crops. Clear? Now on the contrary, if farm is not properly irrigated, that time the soil become dry. राइट, वो जो सॉइल है, वो जो मिट्टी है, वो ड्राई हो जाती है, और ड्राई सॉइल में प्लांट का अच्छे से ग्रो होना पॉसिबल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो मैंने अभी ये जो 3 कंडीशंस बताई वो पॉसिबल नहीं हो पाती है सॉइल के लिए. ठीक है? और व्हेन प्लांट नीड वाटर फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और वो वाटर ही आप सप्लाई नहीं कर रहे हो प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर इंटरवल में, प्रॉपर टाइम में, तो क्या होता है? Plants are not able to grow. If they will grow somehow, they will not be the converted into healthy crops. So ultimately जो yield होगा वो क्या होगा? कम होगा. So there will be no much more benefit. Means ultimately there will be loss of farmer. ठीक है? So that's why it's very very important factor of the agriculture, that is irrigation. Understand? Without irrigation, agriculture is hardly impossible. Impossible हो ही नहीं सकता. कितनी भी आपकी सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, सॉइल का पीएच अच्छा है, आपने सीड सो कर दिए है या फिर सोइंग कर दिया है और पानी नहीं दिया, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. क्या होगा? पानी के बिना क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता. क्लियर? अभी ये पानी जो है इरिगेशन के लिए, उसके सोर्सेस क्या है? व्हाट आर द सोर्सेस फॉर इरिगेशन? सबसे पहली होती है रेन. Right, the first and very important source of the irrigation water is rain. In many part of our country, the agricultural practices are based on rain water, rain-fed agriculture से बोलते हैं हम. ठीक है? उसके बाद जो आती है रिवर्स होती है, कैनाल्स होते हैं,
ponds, lake, ditches, wells, tube wells, bore wells, ये जो सारी चीजें हैं that act as the source of water for the irrigation. Understand? Now, काफी सारे समय से मीन्स बिफोर मेनी इयर्स, सिंस मेनी इयर्स we are practicing for this agricultural practices. We are means we Indian, our country, all over the world. In our country, the irrigation has been carried out by different methods. जैसे दिन आगे जा रहे या days and decades are passing on. The methods of irrigations are also changing. ये methods भी change हो रही है. Change हो रही है means what? पहले जो ट्रेडिशनल वेज थे वो अलग थे, अभी जो हम अप्लाई कर रहे हैं अपने फार्म में, अपने फील्ड में, वो अलग अलग है. सो लेट्स सी वन बाय वन कि ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से हैं और मॉडर्न मेथड कौन से है. सो फर्स्ट इज विल टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड. इन दैट मेनली वी हैव मोट सिस्टम, देन चैन पंप सिस्टम, देन ढेकली सिस्टम एंड देन रहाट. ठीक है, ये मोट क्या था? इट इज सिंपली बेस्ड ऑन द जो सिंपल मशीन्स आपने पढ़ा होगा क्लास 5-6 में, सिंपल मशीन जो लेवर होते हैं, पुली होती है, ये जो मशीन्स थे उन पे बेस्ड थे. अभी हाउ इट वाज वर्किंग, व्हाट वाज द फैक्ट. देखो एक सिंपल सी बात, बिफोर आई टॉक अबाउट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, लेट मी टेल यू दैट इन द अर्लियर पीरियड, मतलब पहले के काफी सालों पहले, मतलब 2-3 डिकेड पहले तक जो वेल्स थी ना, वेल्स कुएं जो थे खेती में, वो ज्यादा डीप नहीं होते थे क्योंकि तब ग्राउंड वाटर लेवल काफी हाई था. अंडरस्टूड? वेल्स वर ऑलमोस्ट फुल ऑफ वाटर. क्लियर? That's why it was possible for the farmers at that time to practice for these type of irrigation system. So, what was the system? Suppose ये है well. Okay, this is the well. And to that well, there was a pulley fixed at the टू एंड. वेल के दोनों साइड में ऊपर इसे लकड़ी का सपोर्ट देके पुली फिक्स की हुई रहती थी, और उस पुली को एक थ्रेड के हेल्प से एक बहुत बड़ा सा ऐसा पॉट, यहाँ पे लिखती हूं मैं पीओटी पॉट बांधा हुआ रहता था. राइट? एंड दैट इट वॉज कैरिड आउट बाय द पेयर ऑफ बुलक. मतलब पेयर ऑफ बुलक या सिंगल बुलक से वो उनके शोल्डर पे वो उड़न बीम डाल के उनको ये बांधा हुआ रहता था. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन दैट रोप वाज लूजन, दैट टाइम दैट पॉट वाज गोइंग इनसाइड द, वो इसके पानी के अंदर जाता था. पानी के अंदर जाने की वजह से क्या होता था? दैट वाज गेटिंग फुल ऑफ वाटर. देन ये पानी से भरने के बाद the farmer used to make the bullock move in the opposite direction of that wall, थोड़ा सा दूर जाने के लिए. जैसे ये आगे जाता था तो क्या होता था? पुली की वजह से ये जो घड़ा हुआ है पानी का भरा हुआ, ये ऊपर आ जाता था. राइट? सो द फार्मर हु इज स्टैंडिंग हियर used to take that in his hand and make it inverted and allow the water to go into the field. Again घड़ा खाली कर दिया, पानी डाल दिया, फिर से रस्सी खींचना, वो पॉट अंदर जाएगा. अंदर गया, फिर उसको हिलाना. इट वॉज नॉट सो डीप, सो इट वॉज इजी टू मेक इट फील बाय वाटर इनसाइड द वेल. फिर से बुलक को पुश करना, धक्का देना, इट विल मूव अवे फ्रॉम द वेल, इट विल गेट फील्ड, इट विल कम अप. सो in this way the mode system of irrigation was carried out. The next is chain pump. चैन पंप कैसे होता था? चैन पंप जनरली यूज्ड व्हेन द रिसोर्स ऑफ द वाटर इज लेक, रिवर, पॉन्ड. मतलब सुपरफिशियल पानी का जो सोर्स है उसी के लिए ये यूज किया रहता था. जनरली आपका फील्ड का जो लेवल है उससे वो नीचे होना चाहिए. सपोज ये है आपका फील्ड और यहाँ पे है आपका वाटर, जो भी सोर्स है वहां पे. ठीक है? नाउ देयर वेर 2 व्हील्स. One wheel was fixed and these 2 wheels were attached by a rubber pack.
rubber belt we can say. Okay, जो साइकिल के जो दो व्हील्स होते हैं उनके जो एक्सिस होते हैं वो कैसे वो चेन से बांधे हुए रहते हैं. इट इज सिमिलरली दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, इन पे छोटे छोटे ऐसे बकेट्स फिक्स किए रहते थे. बकेट ऐसे फिक्स किए रहते थे. ये सपोज आपका है व्हील, यहां पे इसको एक हैंडल रहता था. फार्मर यूज्ड टू रोटेट दैट हैंडल. ओके, एंड व्हेन द फार्मर वाज रोटेटिंग द हैंडल, दैट टाइम इट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, इन दिस डायरेक्शन. सो क्या होता था, व्हेन दैट बेल्ट वाज कमिंग इनसाइड दैट वाटर एंड मूविंग अप, तो जाते समय वो जो बकेट थी वो पानी से भर जाती थी. बकेट्स मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे, जिसका वेट इन बेल्ट से कैरी किया जा सके. सो ये भर जाती थी. राइट, भरने के बाद जब ये ऊपर आती थी तो ऊपर आते समय ये ऐसे टिल्ट हो जाती थी, टेढ़ी हो जाती थी. सो अल्टीमेटली टेढ़ी हो जाने से क्या हो जाता था, पानी यहाँ पे नीचे गिर जाता था. सो फ्रॉम हियर द वाटर वॉज सप्लाइड टू द फार्म. अंडरस्टैंड? बट फॉर दैट द फार्मर हैज टू कंटिन्यूली रोटेट द हैंडल ऑफ दिस वन व्हील. उसका जो एक्सेस पे फिक्स किया था वो उसको कंटिन्यू रोटेट करना पड़ता था ताकि वो इस डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव हो सके. सो दिस वाज चेन पंप. द नेक्स्ट, सी ऑल these diagrams are given in your book very nicely. I may not be able to draw as nicely as in your textbook, but I hope you understand what I am telling you. Next is a dhekli. It was also very simple. Suppose this is a well. Okay, this is a well. And यहाँ पे एक ऐसा वुडन का जो लॉक है वो फिक्स किया जाता था. एकदम स्ट्रॉन्ग ऐसा, क्योंकि उस पे उनको क्या हैंग करना है, एक बहुत बड़ा वुडन का लॉक, जहां पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोन, पत्थर टाल किया हुआ रहता था. और यहाँ पे बकेट या फिर कोई भी कंटेनर जो पानी निकाल सके. राइट, now it was a simple lever beam well. इससे क्या होता था, इससे when the farmer was pulling the rope, that time it was getting inverted. मतलब ये जो है वो upward direction में चला जाता था. right, upward direction में. when that bucket was going into the water, it is getting filled. right, and धीरे धीरे farmer क्या करता था, इस थ्रेड को लूज करता था. लूज करने की वजह से क्या होता था, ये जो ऊपर आया हुआ जो शॉर्टर एंड ऑफ द और शॉर्ट एंड ऑफ द बीम है वो नीचे की डायरेक्शन में चला जाता था. ऑफ कोर्स ये हेवी है एज कंपेयर टू दिस बकेट ऑफ वाटर. सो व्हेन इट गोज डाउन, अल्टीमेटली दिस बकेट कम्स अप. राइट, और वो बकेट जब ऊपर आएगी तो इट इज फिल्ड विथ वाटर. सो फार्मर यूज टू टेक इट. अगर ये फार्मर है, used to take it and get it pour into the or get it inverted. So फिर से यहाँ से फार्म को या फील्ड में वो पानी चला जाता था. अगेन ही हैज टू रिपीट. अगेन वो थ्रेड को लूज करना, बकेट नीचे चली जाएगी. बकेट नीचे चली जाएगी तो ये ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा. ये ऊपर की डायरेक्शन में आ गया मतलब बकेट नीचे, बकेट पानी से भर गई. अब ये ऊपर आएगी तो धीरे 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 ये नीचे जाएगा. अंडरस्टैंड? सो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल लेवल बीम इट वाज कैरिंग आउट. Understood? And the last one is the rahat. It is also work on a simple level. ये थोड़ा सा अलग था. Let's see how. When the water is at superficial level, that time it was also a giant wheel. एक बड़ा ऐसा व्हील था. Okay, और उस व्हील को छोटे छोटे से पॉट्स, मेटल के या फिर उड़न ऐसे पॉट्स हैंग किए थे बहुत सारे. राइट, ऐसे. इट वॉज अ व्हील. ओके, और ये क्या है आपका पानी. एंड
ये जो था that was connected here by a simple lever machine, जिसका जो एक्सेस था वो who was carrying that handle with the axis, a pair of bullocks, right? Understand? Now when these bullocks were moving around this device, that time this wheel was getting rotated by itself. Understand? जब ये जो बुलक्स थे ये ऐसे घूमते थे गोल गोल, इसका एक्सिस, तो ये भी ऐसा रोटेट होते जाता था। और ये किसे कनेक्ट था? हमारे मेन व्हील के एक्सिस को कनेक्ट था। जब ये घूमता था तब क्या होता था कि ये जो व्हील इस डायरेक्शन में घूमता था, दैट वाज पासिंग थ्रू दैट सोर्स ऑफ वाटर, राइट? So when it was passing, it was getting full of water. It was getting full of water, full of water, full of water. And when it was coming down again, तो it was getting inverted. वो उल्टा हो जाता था. So of course से उल्टा हो जाने की वजह से क्या होता था? पानी यहाँ पे गिर जाता था. Then from here the path was given to the field, path of water. So इस तरह से पानी field को जाता था. Here the bullocks were rotating this handle with the help of wooden beam which was tied on their shoulder, and here this axis was getting rotated on the contrary. These buckets or these pots were getting filled with water. वो यहाँ से भर जाते थे, पूरा ऐसे घूम के आते थे तो उल्टे हो जाते थे डायरेक्शन में, ओके, इन्वर्टेड हो जाते थे, पानी नीचे गिरता था, पानी इस तरह से फील्ड में जाता था, फिर से ये घूमता था, पानी से भर जाता था. So like this cycle was going on. So all these are the traditional methods where बोलेंगे क्योंकि अभी ये practices ना के बराबर है. Now very few means hardly 1% of the farmers are carrying out the irrigation practices with the help of these methods. But actually ये जो सारी ट्रेडिशनल मेथड्स थी ना वो इसलिए थी, तब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं थी, इतना इन्वेंशंस वगैरह नहीं हुआ था, फार्मर के पास इतने सारे मशीन्स, डिवाइसेस, पंप्स वगैरह ये सब नहीं थे. अंडरस्टूड? बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. इट वॉज नॉट सो इफिशियंट. सोचो कि इतनी छोटे छोटे पॉट्स भर के दिन भर उसको घुमाना पड़ता था, तब जाके थोड़ा सा एरिया जो है खेती का वो इरिगेट हो जाता था. सो एज कंपेयर टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, these methods were not so efficient. It was time consuming, it was labor consuming as well, because the farmer and the pair of bullock or a single bullock was continually engaged into that practice. Understand? So as the revolutionary changes taken place in the field of agriculture, these traditional methods were replaced by the modern methods. Now which are those modern methods? That we will see after some time. That's in next session. Thank you.